Hello everyone, this is Neha. Welcome back on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today I am going to discuss the third chapter from English NCERT Standard Ninth book Beehive. The name of the chapter is The Little Girl. The author of this story is Catherine Mansfield. She was born on 14th of October in 1888 in New Zealand and she died on 9th of January in 1923 in France. By profession, she was a writer, essayist, journalist, and she was also considered as one of the most influential authors of modernist movement. She was such a huge writer and she was so well recognized all over the world that all her works are published in approx 25 languages. Let's start the story. To the girl, to the little girl, he was a figure to be feared and avoided. ये जो छोटी बच्ची थी उसके लिए ये जो पुरुष था ये एक डरावनी सी चीज़ था जिससे वो डरती थी, उसे अवॉइड करती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. हर दिन जब वो अपने ऑफिस जाने लगते मॉर्निंग में तो वो सुबह उसके कमरे में आते और उसे प्यार से चुंबन देते. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और इसके बदले में वे यह बच्ची अपने पिता को कहती अलविदा पिता. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और जब जिस कैरेज से जिस गाड़ी से उसके पिता ऑफिस जा रहे होते थे तो उसकी दूर जाती हुई आवाज़ जब धीरे धीरे करते हुए बिल्कुल गायब हो जाती थी, लुप्त हो जाती थी, तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता था. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. जब शाम को वो वापस आते तो वो हॉल में जब बोल रहे होते तो वो स्टेयरकेस के पास सीढ़ियों के पास खड़े होकर उनकी आवाज़ को सुनती थी. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? मेरी चाय जो है वो ड्राइंग रूम में लेके आओ. क्या पेपर अभी तक नहीं आया? Mother, go and see if my papers out there and bring me my sleepers. माँ, जाओ और देखो कि मेरे पेपर्स जो हैं क्या वहाँ पड़े हुए हैं और मेरे स्लीपर्स भी लेके आ जाओ. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. केजिया की जो माँ थी वो कहती थी कि केजिया, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो नीचे आ जाओ और अपने पिता के बूट्स उनके पैरों से निकाल दो. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly, still across the hall, and push open the drawing room door. धीरे धीरे ये बच्ची सहमी सी डरी सी सीढ़ियों से होते हुए नीचे आती और उसी तरह से धीरे धीरे चल के पूरे हॉल को क्रॉस करती. By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और जब वह ड्राइंग रूम में दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती तो उसके पिता तब तक अपनी आंखों पे चश्मा पहन लेते थे और उसे इस तरीके से देखते थे कि वो भयाक्रांत हो जाती थी, डर जाती थी. Will Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. ठीक है केजिया, अभी तुम इन बूट्स को जल्दी निकालो और बाहर रख दो. Have you been a good girl today? क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची की तरह रही हो? I did don't know father. तब केजिया हड़बड़ा के कहती कि मुझे नहीं पता है पिताजी. You don't know? If you shudder like that, mother will have to take you to the doctor. तब उसके पिता इसी तरह से हकला के बोलते, तुम्हें नहीं पता? तब अगर तुम हकला के ऐसे ही बोलोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वो कभी भी दूसरे लोगों के सामने हकला के नहीं बोलती थी. यह सिर्फ उसके पिता के सामने ही होता था और वो इसलिए होता था क्योंकि वो बहुत मुश्किल से और डर के कुछ शब्दों को उनके सामने बोल पाती थी. What is the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry me my teacup back to the table carefully. क्या बात है?
तुम इस तरीके से क्यों देख रही हो? तुम इतनी नाखुश क्यों लग रही हो? माँ, मुझे लगता है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अगर थोड़ा-सा इस पे ध्यान दिया जाता, इसे सिखाया गया होता, तो ये इस तरीके से नहीं देखती, जैसे लग रहा है कि ये सुसाइड करने वाली है। फिर वो कहते, "केज़िया, यहाँ आओ, मेरे टी कप को लो और टेबल पे इसे ध्यान से रख दो।" He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. वो कितने बड़े थे, उनके हाथ, उनकी गर्दन, खास करके उनका मुंह, जब वो यॉन करते थे, जम्हाई लेते थे। Thinking about him alone was like thinking about a giant. उनके बारे में अकेले सोचना तो ऐसे लगता था जैसे किसी जाइंट के बारे में बात कर रहे हैं। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे की सुबह संडे की दोपहर को दादी माँ जो थी, वो केजिया को ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने माता पिता से कुछ समय बात कर सके। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of their best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन जब कभी भी वो जाती, ये बेचारी बच्ची केजिया जब अपने माता पिता से बात करने जाती, तो वो अक्सर देखती कि उसकी माँ पढ़ने में बिजी रहती, उसके पिता सोफे पे फैले रहते थे सोने के लिए, सोए रहते थे, जिसमें कि वो अपने हैंडकरचिफ को, अपनी रुमाल को अपने चेहरे पे रख लेते थे, अपने पैरों को कुशन पे रख लेते थे और वो सो रहे होते थे और स्नोर करते थे, मतलब खर्राटे भर रहे होते थे। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. वो तब तक वहाँ स्टूल पे बैठी रहती जब तक कि वो उठ नहीं जाते और टाइम नहीं पूछते और उसकी ओर देखते नहीं। डोंट स्टेयर सो, केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। इस तरह से घूर के मत देखो केजिया, तुम एक छोटी सी भूरे रंग की उल्लू जैसी दिखती हो। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब वो घर में थी, ठंड के मौसम में, तब उसकी दादी माँ ने बताया कि उसके पिता का जन्मदिन अगले ही सप्ताह में है और उन्होंने यह भी सलाह दिया कि उसे अपने पिता के लिए एक कुशन बनाना चाहिए, एक पीले रंग के सिल्क के कपड़े का कुशन बनाना चाहिए। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. बहुत मेहनत करके इस छोटी बच्ची ने 3 साइड से कुशन का जो साइड था उसे सिल दिया। बट वॉट टू फिल इट विद? लेकिन अब इसके अंदर वो आखिर फिल क्या करेगी, क्या भरेगी? दैट वॉज द क्वेश्चन। यही प्रश्न था उसके पास। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। दादी माँ गार्डन में थी उसकी, इसीलिए वो अपनी माँ के कमरे में चली गई कुछ ढूंढने के लिए जिसे वो उस कुशन के अंदर फिल कर सके। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. वहाँ साइड टेबल पे पड़े हुए जितने भी पेजेस थे, शीट ऑफ पेपर थे, उसे उसने उन सभी को उठा लिया, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और उसे अपने उस कुशन में स्टफ कर दिया, फिल कर दिया और जो चौथा साइड था उस चौथे साइड को भी सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात घर में अफरा तफरी का माहौल था, सब गुस्से में थे। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पिताजी को जो स्पीच देनी थी, जो लिखा हुआ था कहीं पे पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चनड, सारे कमरों की तलाशी की गई, नौकरों से सवाल किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। अंत में उसकी माँ जो थी वो केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मुझे उम्मीद है कि हमारे कमरे के टेबल पे पड़े हुए पेपर्स को तुमने नहीं देखा। ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। हाँ, मैंने देखा था और मैंने उन सभी को टुकड़ों में फाड़ करके अपना सरप्राइज प्रिपेयर करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। वॉट,
screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. उसकी माँ ने चीखते हुए कहा कि क्या, ये तुमने क्या कर दिया? तुम तुरंत मेरे साथ अभी डाइनिंग रूम में चलो. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और उसे उस जगह पे लाया गया जहाँ उसके पिता इधर उधर परेशान होकर के घूम रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे. वेल, ही सेड शार्पली. उन्होंने कहा ठीक है. मदर एक्सप्लेन्ड. उसकी माँ ने सारा एक्सप्लेनेशन दिया, सब कुछ बताया क्या हुआ. शी स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. वो रुक गई और वो बच्ची को घूरने लगी. डिड यू डू दैट? क्या तुमने ऐसा किया? न नो, शी विस्पर्ड. उसने फुसफुसाते हुआ कहा नहीं. मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. तुम जल्दी से ऊपर कमरे में जाओ और देखो कि इसने क्या किया है. आखिर इस बच्ची ने कमरे में जो पीस ऑफ पेपर पाया उसका किया क्या? Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी और साथ ही साथ बताने की भी कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या था. Then father came into the room with a ruler in his hands. फिर उसके पिता अपने हाथ में एक छड़ी लेके कमरे के अंदर आए. I'm going to beat you for this, he said. उन्होंने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें पीटूंगा. ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स. वो बेड क्लॉथ्स के अंदर छुपते हुए चीखते हुए कही. उसने कहा कि नहीं नहीं. ही पुल्ड हिम देम असाइड. उन्होंने उस बेड क्लॉथ्स को एक तरफ खींच दिया. सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. चुपचाप बैठो और अपने हाथ बाहर की तरफ निकालो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. मैं आज तुम्हें ये सिखा दूंगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है वो तुम्हें नहीं छूना चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. लेकिन ये तो मैंने आपके जन्मदिन के लिए किया. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. उसके कोमल मुलायम गुलाबी हाथों पे रूलर जो छड़ी थी वो बरसने लगी. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटों के बाद जब उसकी दादी माँ ने उसे अपने शॉल में छुपा लिया और उसे रॉकिंग चेयर पे बिठा लिया, तब उस बच्ची ने अपनी दादी माँ को पकड़ लिया. What did God make fathers for? She sobbed. उसने सुबकते हुए कहा, आखिर भगवान ने पिता को बनाया ही क्यों है? Here is a clean hanky, darling. बेटा, फिर उसकी दादी ने कहा कि बच्ची देखो यहाँ पे एकदम साफ सुथरी ये हैंकी है. ब्लो योर नोज, अपना नाक साफ कर लो. गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. तुम जाओ, सो जाओ और सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पिताजी को सारी बात बताऊं, लेकिन वो इतने अपसेट थे कि उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन बच्ची जो थी वो इस घटना को कभी नहीं भूल पाई. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लिव इनटू हर चीक्स. अब जब कभी भी वो अपने पिता को देखती तो उसे वो मार याद आती, वो डर जाती और वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेती. द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर. मैकडोनल्ड्स जो थे वो बगल के ही घर में रहते थे. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. अपने घर के बाहर जो फेंसिंग थी, जो 4 दीवारी बनी हुई थी, जो बाउंड्री बनी हुई थी, उसी के गैप में से झांकते हुए केजिया ने देखा, उस बच्ची ने देखा कि मैकडोनल्ड्स जो है वो अपने बच्चों के साथ शाम के समय में टैग नाम का गेम खेल रहे हैं. टैग का मतलब एक दूसरे को पकड़ने, जिसे हम पकड़म पकड़ाई वगैरह भी कहते हैं, वो खेल रहे हैं. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स. पिता जो थे उनके कंधे पे बच्चा माओ था. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स. और 2 जो बच्चियां थी वो उनके कोट के पॉकेट में हाथ रख के घूम रही थी. रैन राउंड एंड राउंड
द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर, और सब के सब इतना हंस रहे थे कि हंसने की वजह से वो कांप रहे थे. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them, laughing laughing all the time. एक बार तो बच्चों ने हौज ही उनकी तरफ ओपन कर दिया और उन्होंने अपने बच्चों को हंसते हुए पकड़ने की कोशिश की. Then it was she decided there were different sorts of fathers. तब केजिया को ये समझ में आया और उसने ये सोचा कि पिता भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं. Suddenly, one day, mother became ill and she and grandmother went to hospital. एक दिन अचानक केजिया की माँ बीमार हो गई और उसकी माँ और दादी माँ दोनों हॉस्पिटल चले गए. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. अब ये छोटी बच्ची केजिया जो थी वो घर में सिर्फ एक कुक एलिस के साथ रह गई. That was all right in the daytime. दिन के समय तो सब कुछ ठीक रहा. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब एलिस उसे बेड पे सुला रहा था तब वो अचानक डर गई और उठ के बैठ गई. What will I do if I have a nightmare? she asked. उसने पूछा कि अगर मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. अक्सर मुझे बुरे सपने आते हैं तब दादी माँ मुझे अपने बेड पे सुला लेती हैं. I can't stay in the dark. It all gets whispery. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे बहुत डरावना लगता है. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream and wake your poor pa. तब एलिस ने कहा कि बच्ची तुम सो जाओ, और साथ ही साथ उसने केजिया के सॉक्स निकाल दिए और ये भी कहा कि सोते वक्त तुम बिल्कुल भी चीखना या चिल्लाना मत. But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." लेकिन फिर उस रात भी उसे वही बुरा सपना आया जिसमें वो कसाई जो था उसने अपने हाथ में एक चाकू और एक रस्सी ले रखी थी और वो बहुत ही निर्दयी तरीके से हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी. वो उसी जगह पे स्थिर खड़ी रही और सिर्फ यही चिल्ला रही थी, दादी माँ, दादी माँ. She woke up shivering to see father bedside her bed, a candle in his hand. जब उसकी आंख खुली, जब वो डर के मारे जग गई, तो जगने के बाद उसने देखा कि उसके पिता उसके बगल में, उसके बेड के बगल में ही मोमबत्ती लेके खड़े हैं. What is the matter? He said. उन्होंने पूछा, क्या बात है? Oh, a butcher, a knife, I want Granny. तब केजिया ने कहा कि एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. उन्होंने कैंडल को बुझा दिया, बच्ची के पास बैठ गए और उसे अपनी बाहों में भर लिया. फिर उसे उठा के बड़े से पैसेज से होते हुए अपने बड़े से बेडरूम में लेके गए. A newspaper was on the bed. बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था. He put away the paper, then carefully tucked up the child. उन्होंने न्यूज़पेपर को एक तरफ हटा दिया और इसके बाद बच्ची को अच्छे तरीके से बिस्तर पे लिटा के ढक दिया. He lay down beside her. वो उसकी बगल में लेट गए. Half asleep still with the butcher's smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अभी भी बच्ची जो थी वो उसे पूरी नींद नहीं आई थी. वो आधी सोई आधी जगी हुई सी थी. उसे अभी भी उस कसाई की मुस्कुराहट याद आ रही थी जिसकी वजह से वो डर गई और अपने पिता के बाहों में जाके वो छुप गई और उनके शर्ट को उसने बहुत जोर से पकड़ लिया. Then the dark did not matter. She lay still. और जब उसने ऐसा किया तो उस अंधेरे से भी उसे डर लगना अब बंद हो चुका था. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. पिता ने कहा कि तुम अपने पैरों को मेरे पैरों के साथ रगड़ दो जिससे कि तुम्हारे पैर गर्म हो जाएंगे. Tired out, he slept before the little girl. वो इतने थके थे कि बच्ची के सोने से पहले ही वो खुद सो गए. A funny feeling came over her. उसे बहुत ही
फनी सी एक फीलिंग आई, पुअर फादर, नॉट सो बिग। उसने सोचा बेचारे पिताजी इतने भी बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी ऐसा अभी नहीं है जो उनकी देखभाल करे। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। वो दादी माँ से थोड़े से हार्ड थे। दादी माँ जितनी कोमल लगती थी, ये उतने कोमल नहीं थे, बल्कि सख्त थे, लेकिन उनकी ये सख्ती भी उसे अच्छी लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। और हर दिन वो इतना काम करते हैं कि थक जाने की वजह से वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं बिहेव कर सकते। She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. अचानक उसे ये बात याद आई कि उसने उनके लिखे हुए उस खूबसूरत से स्पीच को फाड़ दिया, बेकार कर दिया, और इसके लिए उसे अफसोस होने लगा। What is the matter? asked her father. Another dream? उसके पिता ने पूछा, क्या बात है? क्या तुमने फिर से कोई दूसरा सपना देखा? Oh, said the little girl. My head is on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. तब केजिया ने कहा कि पिताजी, मेरा सिर आपके दिल के पास है और ये इसकी धड़कन को मैं सुन पा रही हूँ। आपका दिल कितना बड़ा है मेरे प्रिय पिताजी। फ्रेंड्स, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये हिंदी में लाइन बाय लाइन मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता होगा, आपको अच्छा लगता होगा। If you like my explanation, please share it to your friends, subscribe my channel and keep on watching. Thank you very much. Have a good day.